Hi all, this is Dr. Anupama Verma. I am pathologist. Most important comment which I received was that I had used too many technical words because it was basically made for the doctors, our association doctors who were facing problem with diagnosis of COVID disease. As you all know, the disease started in December 2019 at Wuhan at China, and then it traveled to India in Jan and Feb. And by start of March, everybody was knowing about the disease. Modi ji announced lockdown on 21st of March. Everybody is learning about it. So this video is specifically for general public. ये पब्लिक है, ये सब जानती है, लेकिन ये बीमारी ऐसी है, इसके बारे में कोई भी कुछ भी अच्छे से नहीं जानता. हम सब सीख रहे हैं. वी डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस, नेता, अभिनेता, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस पर्सन, जनरल पब्लिक, everybody is learning about it. New guidelines are coming daily, new research has been done, and we are learning daily. What we have learned in last 3 months, from March, April, May, June, and now it's July, 4th month is going on. What we have learned, that I want to share with you. See, everybody knows how to prevent it. You have to maintain hand hygiene, you have to wear mask, and you have to maintain social distancing. The disease spreads from droplet infections. Somebody is sneezing, somebody is coughing, talking loudly. Then the droplets, they travel via air and they enter the respiratory cavity, the mouth and nose, those cavities, that is the entry point of the infection. So everybody knows about it. This video is basically what happens if you become ill. What are the signs and symptoms of COVID? When you should approach doctor? See, previously when the disease started, everybody was saying that it will present like fever, patient will have cough, there will be sore throat. Then slowly it progressed to there may be breathlessness, there will be cough, that is dry cough. Then after 1 month we came to know there will be loss of taste, loss of smell. Then since last one we know that it can present as vomiting, it can present as loose motion, it can present as some skin infection also. So there are many kinds of presentation. But most common is it can be fever, it can be without fever, it can be cough, and most important is sore throat, loss of taste and loss of smell, and severe malaise. Malaise means when the person is not feeling well, lot of tiredness and restlessness, patient is not feeling at ease, So if you are feeling like that, previously in last 20-25 years of my practice, what we are saying, when there is fever, we generally do fever profile, we do malaria, typhoid, dengue, routine blood test. But we were not thinking of COVID. Even till last one, every doctor was first ruling out most common diseases. But now we are reaching the peak of COVID disease. So the first differential diagnosis, first suspected disease is COVID, second is COVID, and third is COVID. So what the researchers and specialists, they are advising, whenever there is a fever, you have to first think of COVID. You shouldn't hide it. आपको उसको छिपाना नहीं है, आपको आपके घर के लोगों को बताना है. घर के लोगों को भी छिपा के कुछ मिलने वाला नहीं है. आपने छिपाया तो बीमारी कहीं जाती नहीं है. बहुत बार ऐसा होता है कि घर के किसी एक सदस्य को बुखार होता है या गले में खराश होती है, सोर थ्रोट होता है, और लोग उसको साधारण सर्दी खांसी वायरल समझ करके टाल देते हैं. वो आप मत करिए. मेरी एडवाइस है आपको, आप आपके डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको एग्जामिन करेगा, उसको समझ में आएगा तो वो आपको सजेस्ट करेगा व्हाट इज़ टू बी डन. और अगर आपका एंटीजन टेस्टिंग या RT-PCR में पॉजिटिव आता है तो आप अपने घर के लोगों को भी बचा सकते हैं. बहुत बार ये बीमारी असिम्टोमेटिक रहती है, पेशेंट को कोई सिम्टम्स ही नहीं आते. घर में किसी एक को सिम्टम आते हैं, घर के बाकी लोगों को कोई सिम्टम नहीं आता. लेकिन अगर हम वो टेस्ट करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि उनके घर के पूरे सदस्य 5 या 6 सबके सब लोग पॉजिटिव हैं. उसमें घबराने की कोई बात नहीं है.
आजकल होम क्वारंटाइन भी उपलब्ध है। आप घर में ही रह करके अलग कमरे में रह सकते हैं। अगर आपके पास सेपरेट वॉशरूम है, आपके खाने पीने की सुविधा है, एक कोई केयर टेकर है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं कि डॉक्टर्स को मालूम है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको घर से जबरदस्ती ले जाया जाएगा और आपके घर के लोग आपसे अलग हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब होम क्वारंटाइन की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके घर के लोगों को भी सेपरेट क्वारंटाइन में रखा जाएगा। पर्पज ये है कि आप अगर डॉक्टरी निगरानी में हैं, आपके सिम्टम्स अगर बढ़ते हैं तो डॉक्टर आपकी जान बचा सकते हैं। क्योंकि इस बीमारी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है जो बहुत लोगों को अभी नहीं मालूम, विच इज कॉल्ड हैप्पी हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब ब्लड में, आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी। तो जब हम लोग बहुत भागते हैं, आपने नोट किया होगा, हम बहुत तेज सांस लेते हैं, जोर जोर से सांस लेते हैं। सांस लेने में हमको तकलीफ होती है, हम बहुत जोर जोर से सांस लेते हैं। वैसे ही हाइपोक्सिया होता है जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। लेकिन इसको हैप्पी हाइपोक्सिया इसलिए बोलते हैं, नॉर्मली इट इज 98, 99, 100 इतना रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, SpO2, ऑक्सीजन सैचुरेशन। इसलिए लोग आजकल अपने घर में पल्स ऑक्सीमीटर रखते हैं। इस बीमारी में ऐसा होता है कि पेशेंट को 1-2 दिन का फीवर आता है, उसका टेस्टिंग करते हैं, पॉजिटिव आता है, और पेशेंट सोचता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, किसी के पास जाता नहीं है, कोई सलाह नहीं लेता है, या पॉजिटिव टेस्ट भी नहीं कराता है। एक्चुअली वो पॉजिटिव रहता है, उसको मालूम नहीं रहता है। वो घर में रहता है, कोई जरूरत नहीं है, टेस्ट करवाऊंगा तो पूरे मोहल्ले में बदनामी होगी, एक स्टिग्मा है, पूरे मोहल्ले के लोग बोलेंगे अरे पॉजिटिव क्यों आया, कैसे आया, लोग हमारे घर की तरफ अलग नजरिए से देखेंगे। तो लोग छिपाने की कोशिश करते हैं और फिर स्लोली स्लोली उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है और सडनली आधी रात को उसको ऐसा लगता है कि वो सांस नहीं ले पा रहा, ब्रेथलेस हो जाता है और इमरजेंसी में उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कभी हॉस्पिटल में बेड मिलता है, कभी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता है। बेड मिलता है तो ऑक्सीजन नहीं मिलती है, बेड मिलता है तो आईसीयू नहीं मिलता है, आईसीयू मिलता है तो वेंटिलेटर नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मेरा आपको सजेशन है, बीमारी छिपाने में कुछ नहीं पड़ा हुआ है। आप आपके डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको टेस्ट एडवाइस करेंगे। टेस्ट एडवाइस करके आपको रियल स्टेटस मालूम पड़ेगा, आपको आपकी केयर कैसे लेनी है वो मालूम पड़ेगा। डॉक्टर आपको डिसाइड करेगा कि आप माइल्ड कैटेगरी में है, मॉडरेट में है, सीवियर में है। उसके हिसाब से आपको हॉस्पिटलाइजेशन करना है कि घर पे रखना है। आपके घर के लोगों की टेस्टिंग होगी और बिलीव मी, आफ्टर 15-20 days यू विल कम होम। मोर देन 90% पीपल दे आर कमिंग होम। इसका इलाज नहीं है, लेकिन बहुत लोग इसमें जिंदा और ठीक होकर के वापस आ रहे हैं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बीमारी को छिपाइए मत, उसको शेयर करिए, घर के लोगों को बताइए, घर के लोगों को बोलिए डॉक्टर के पास ले चलें, और उसको छिपाने से कुछ नहीं मिलने वाला हमें। और ये हैप्पी हाइपोक्सिया बहुत ही डेंजरस है। सडनली आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाएगा और ब्रेथलेसनेस के बाद आपको अचानक मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाएगी। इसलिए मेरी आपसे विनती है, अनुरोध है हाथ जोड़ करके, कि बीमारी को छिपाने में कुछ नहीं पड़ा है। आप सकुशल अच्छे होकर आएंगे। इन जनरल देखा गया है कि 50 साल के ऊपर वो लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे उनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, किडनी डिसऑर्डर है, डायलिसिस पे है, कुछ और बीमारी है, तो उन लोगों को इस बीमारी से ज्यादा तकलीफ होती है। और बहुत ओल्ड है, जैसे कैंसर थेरेपी पर है या उसको कैंसर है, लाइलाज है, ऐसी कोई और बीमारी है, तो उसके साथ में ये दोनों बीमारियां मिलकर के पेशेंट के जिंदगी को रिस्क है। अदरवाइज मोर देन 90% लोग, आई एम प्लेस्ड एट बॉम्बे, मैं देख रही हूँ लोगों को, लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, 1-2 हफ्ते के इलाज के बाद घर पे वापस आ रहे हैं। घबराने से कुछ नहीं होगा। आपने अगर मुंह छिपा लिया, इसका मतलब लोगों ने आपको देखा नहीं, ऐसा नहीं है। बीमारी आपको पकड़ ही सकती है, भगवान ना करे आपको बीमारी हो, लेकिन अगर है तो छिपाइए मत, मेडिकल हेल्प लीजिए, आप ठीक होकर आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और हम डॉक्टर्स आपके लिए हैं, और भगवान के लिए जो अफवाहें हैं, रूमर्स है व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, कि ये झूठ है, कोरोना करके कोई बीमारी ही नहीं है, ये डॉक्टर्स लोग लूट रहे हैं, पैथोलॉजी लैब्स लूट रही है, इन सब का कुछ तो भी आपस में कनेक्शन है, ये सब बातें झूठ है। मेरे बहुत सारे डॉक्टर फ्रेंड्स की डेथ हो चुकी है, बहुत सारे डॉक्टर फ्रेंड्स के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, उनके फैमिली मेंबर्स की डेथ हो चुकी है, बहुत लोग सीरियस हैं अभी भी आज के तारीख में। इतने लोग, पूरा वर्ल्ड एक साथ झूठ नहीं बोल सकता। आपको सच्चाई से मुंह नहीं छिपाना है, जो है उसको एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि अंत में कोरोना हारेगा और हम सब जीतेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लोगों से शेयर करिए, क्योंकि गलतफहमी जो है सबका संसार बिगाड़ देती है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा इसमें कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, सिर्फ यही एक मकसद है कि आप बीमारी को सही तरीके से समझें, अपने और अपने परिवार और अपने समाज के लोगों की जान बचाएं,
और कोई पॉजिटिव है तो उसकी तरफ सहानुभूति से देखें, अपने आप को बचाइए, लेकिन उसको बचाने के लिए जो भी आप मदद कर सकते हैं वो आप करिए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज डॉक्टर अनुपमा वर्मा साइनिंग ऑफ।